on the basis of the condition. ये स्टेटमेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, यहाँ तीन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट क्या है उसके हिसाब से ही नाउ माय स्टेटमेंट, माय इफ स्टेटमेंट will choose the execution at the time of the execution. So that means execution of a statement is to be done on the basis of a condition. जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट कब होगा? इस कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ये एक स्टेटमेंट है, कई सारे स्टेटमेंट होंगे, तो कोई भी स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका सिंटैक्स है इफ, और जब भी ये इफ लगेगा तो उसके साथ ये कोलोन जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें इंडेंटेशन फॉलो करना है, एक ब्लॉक बनाना है इफ के लिए। और किसी भी कंडीशन में अदर प्रोग्रामिंग में भी ब्लॉक बनता था, चाहे सी हो चाहे जावा हो, जो है उसमें भी हम ब्लॉक को बनाते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन मोर स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक बनाते हैं। लेकिन अगर बनाते भी हैं तब भी वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसी तरह से एज यू हैव टू डू द समथिंग, यू हैव टू क्रिएट द ब्लॉक फॉर द इफ। अब इसका एक एग्जांपल, नाउ जस्ट आई वांट टू पुट द एग्जांपल लाइक suppose that I am taking a is equal to 10 and I am giving the condition here a is equal to 10. This is the equality operator, not the equal operator. Equal to is the equality, checking for the equality. Equality, that means compare. Equality, not equal, not equal. So that means if you want to compare, so that means double equal is the equality. You if you want to check the equality ki either a is equal to 10 or not, so you have to put the equality sign. Equality means equal sign. So that means I want to check whether a is 10 or not. So that means if यहाँ पे लगा हुआ है तो now I have to put the colon, and when we put the colon, block will automatically create it. That means I want to create a print. This is the statement. This is the statement, print a is equal to 10. This is the simple statement of the if statement. Simple statement of the if. Now just I will do the same thing in the Python. Ideally I will do the same thing. Or now I am going to share the Python. This is the Python. Ideally I want to create the cell, edit new file, and just I want to open the test file where we will create the, this is the, I want to open the test file. We will open, where is the test file? Test, this is the test file. I have already created. This is the test test file. And now last time we have done like this. So Jupyter Python mein there was some problem, that was the not executing, but in this ideally there is no error. I want to run it, run module, and now you can see that in the last time there was error, but at that time there was no error. But in Jupyter Python there is not going to execute like this.
we will find is the what was the error at that time. I think definition or class we have to make in Jupyter Notebook. That's why this was not executed at that time. Okay, so now my file is this. Now I have created already one program here and one program here, but I want to all the experiment in the test.py file only. I don't want to create a lot of file for the demo purpose. So I will create here. So what we have to do here? We have to do here all these in the remark section or comment section. If you want to put all these line into comment section, you have to put the 3 comma, and now here also 1 2 3. So this will go in the comment section. Whenever we want to execute it, I will clear this 3 comma and then I will execute the program. So let's start. I will also I want to create if else statement. That means this is the I want to comment, write the comment if statement. If statement. Now just I will write the a is equal to 10 if a is equal to 10, and I will put here the colon, will create the block, print a is equal to 10. Just I am going to print here. Now just I am going to save it. This is save it, and now just I am going to run the module. So now you can see the result. Where is the result? Result you can see it. This is the result. A result. So a is equal to 10. This is the result. So this is the condition uh, where I am checking the condition, and according to the condition our statement will be executed. But whatever the second condition, I am putting only the one statement, if statement. Now I want to put the else statement also. Suppose that we don't have a if statement. Suppose that कि हमारे पास 20 आ गया, ठीक है, हमने इसको 20 कर दिया, चलो इसको हम 20 कर देते हैं, and now just I am going to print here. इसको हमने सेव किया और now just I want to run this. So when you run this, there will be no result, no output will come. Now you can see in this no output will be come. Why the output will not come? Because I have not mentioned कि if a equality will be not equal to the a, so what will be the print? That means else option I have not, the statement else statement I have not put here in our program. So how will do that? We will do the else statement also, like suppose that my condition is not satisfied. In this example, now you can see that a is not equal to 10. तो जब a 10 के बराबर है ही नहीं है, तो why the statement will executed नहीं होगा. तो that means इसमें कहीं error भी नहीं है, तो program at the time of execution there will be no statement will be printed. तो अब क्या करेंगे? Now अगर ये condition नहीं satisfied करता है, तो you have put the else option also. तो else option also we have to put it, and else के बाद भी you have to put the colon for creating a indentation या making a block या scope will create automatically. So now I will also print the statement for the else condition. Else matlab the above condition will not satisfied. So A is
not equal to 10. This is not equal to 10. That means now अब क्या होगा, अगर a 20 नहीं है तो that means first condition is not satisfied, then the else option will executed anyhow. तो now this is the save किया और इसको run किया, तो now you can see the result in my in where is the result? Yes, you can see the result. You can see the result. Test.py is running, and now you can see that a is not equal to 10. So that means else part will be executed. Now यहाँ तो हो गया सिंगल स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट. अगर हम यूजर के हिसाब से इनपुट कराएं, नाउ जस्ट I want to put the cursor, put the keyboard. I just want to give the keyboard to the user, any user. तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 ही दे, कोई जरूरी नहीं है कि वो 10 ही दे, कोई 30 दे. तो just I am taking, I want to take a input from the keyboard, and this will be the dynamic programming. तो अब क्या करेंगे उसके लिए, इसको फिर से हम लोग इसको डबल में कर देते हैं, यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, यहीं पे इनपुट कमांड लिखते हैं. तो ए में अब स्टोर कराते हैं, यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट मांगेंगे. तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इनपुट और एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि now we have already studied and I told earlier also कि कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर हम यहाँ पे वेरिएबल माने a is equal to 10, तो 10 is ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा, 10 ऑब्जेक्ट होगा. तो ऑब्जेक्ट अगर a में स्टोर हमारा इनपुट हो रहा है तो ये जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा. दिस विल गो इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट. अब इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को टाइप कन्वर्जन के थ्रू हमें इसमें बदलना होगा, इंटीजर फॉर्मेट में बदलना होगा. तो जस्ट आई विल पुट द int here, and when you will put the here int, this string part is going to convert it into the integer. तो इंटीजर जब तक नहीं करेंगे कैलकुलेशन चालू नहीं होगा. अगर हम इनपुट डायरेक्ट लिखते हैं तो ये सिर्फ क्या देगा, ये सिर्फ, हाँ चलो इसको मैं करके दिखा भी देता हूँ. just I want to put some fact here. ये हमारे पास ये है इंटरप्रेटर. मैंने लिखा a is equal to input, only I am getting to put the input, enter the number, enter the number, enter the number. ये हमने किया और एंटर किया. Now I am going to put the enter 20 मैंने कर दिया. अब a में स्टोर हो गया 20. Now you can see the changes. यहाँ पे जब हमारा a में यूजर के थ्रू 20 स्टोर हुआ तो 20 इज विच टाइप, स्ट्रिंग टाइप. ये स्ट्रिंग टाइप हो गया क्योंकि कॉमा लगा हुआ. नाउ यू कैन चेक आल्सो थ्रू द टाइप कमांड, टाइप a. नाउ यू कैन चेक दैट कि दिस इज द string. And now that just I am going to change here this string part. I am going to change in the int form, and now one यहाँ भी लगेगा. और now I am going to put the enter 20. Now if I am going to put the a, so now you can see the differences. 20 is not going to in the string form. Now you can check the type of a. Type a is the int class. So you have to convert for the calculation purpose. Int is necessary, type conversion is necessary here.
because single input command is taking a string form only. Either you will put the number or anything. अगर नाम देते हैं तो वो तो स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर नंबर देते हैं तो नंबर हमारा आएगा किसमें, स्ट्रिंग में। इसका 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 डीमेरिट क्या है, व्हाट इज द डीमेरिट? अगर ये 20 में आ रहा है तो डीमेरिट क्या है? चलो लेट्स सी। हमने जो है यहाँ पे कर दिया a इज इक्वल टू पुट कर दिया हमने, मान लो 10 पुट कर दिया। फिर एक और हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं b, यहाँ पे b में एक और पुट करा लिया 20। now just I am going to add the a plus b। now the result is not going to give the exact address, exact calculation. 10 plus 20 is the 30, but in the string form 10 plus 20 is 1020। और अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दें इसको, now just I am going to convert here, अगर यहाँ पे int फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और अब यहाँ पे हम 10 दिए और इसी को b को भी हम कन्वर्ट कर दें ऐसे ही 20 में, 20 में b को कन्वर्ट कर दें। और अब अगर हम a प्लस बी के रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नाउ द रिजल्ट इज 30। तो दैट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस कि आपको जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कराएंगे थ्रू इनपुट कमांड, दैट मीन्स यूजर विल गिव द नंबर थ्रू कीबोर्ड, तो यू हैव टू पुट द int before the input। तो इनपुट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, int में कन्वर्जन जरूरी है जब भी आप नंबर को एंट्री कराएंगे तो। ठीक है पीयूष, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चलो नाउ आई एम गोइंग टू आवर रियल मोटो। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे हमने यूजर के थ्रू लेना चाहते हैं हम नंबर, तो हमें तो पता ही नहीं है कि भाई यूजर के मन में उस समय क्या रहेगा, 10 देगा, 30 देगा, 20 देगा, 40 देगा। तो एक हम चलो यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, एक कमेंट लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू इन बिटवीन 10 to 40। ठीक है, 10 to 40 मैंने एक कमेंट पास कर दिया। तो अब भी हमें नहीं पता है कि 10 देगा कि 30 देगा कि 40 देगा कि 20 देगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि इफ में तो बस एक ही एल्स है, लेकिन अगर दोबारा इफ यहाँ पे लगा दें तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो पाइथन में इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर इफ के पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो इफ इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। तो इफ के पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो वो क्या करेगा, वो एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे दे दें, ऐसे अगर दे दें, सपोज दैट हमने दिया 10, यहाँ पे दे दें 20, मान लो यहाँ पे दे दें हम 20, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट दे दें 30, फिर एक स्टेटमेंट दे दें 40। और लास्ट में कह दें क्या कि अगेन गिव द नंबर, प्लीज पुट द नंबर between 10 to
40, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हमारे पास हमने किया क्या कि हमने इफ में बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट हो गए, एक ही स्टेटमेंट नहीं, दो स्टेटमेंट। तो अब क्या ये रन करेगा पीयूष, ये रन करेगा? यस सर, रन करेगा। देखो ये जो है दिस विल नॉट गोइंग टू रन। चलो हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल if only you can put only one if in the program, not multiple if is not going to execute। देखो इसको हमने सेव किया, ये सेव किया और रन करा रहे हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द नंबर हियर, हियर 10, 19, क्या नाम था उसका, टेस्ट था ना, टेस्ट, test.py, test.py, no, import test to test, okay, init.test.init.py, okay. So now I'm going to run this command, run module. Now I'm going to put here 30। हाँ, तो इसको रन कराते हैं तो ये जो है नहीं लेगा, a is equal to 30। और यहाँ पे अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, ओके ओके। जब हम ये रन तो कर गया, लेकिन एक एरर है इसमें। एरर ये है कि यूजर ने यहाँ पे दिया 30, ठीक है, यूजर ने 30 दिया। अब ये कह दिया a is equal to 30 कर दिया, लेकिन now you just see that the else part is also executed। Please put the number between 10 to 40। else part भी execute हो रहा है। तो now the difference is कि अगर हम if के साथ, एक if के साथ कई if ले रहे हैं, तो else part is also going to execute। तो प्रोग्राम तो ये गड़बड़ हो गया, एग्जीक्यूट तो हो रहा है, ओके। नाउ यू आर सेइंग दैट कि इट विल run, yes, it will run there because there is no syntax error। So interpreter will find the syntax error only, so there is no syntax error, so this is going to run। But at the time of execution, which if is will be executed, either 30, तो 30 तो एग्जीक्यूट हो गया, बट द एल्स पार्ट इज आल्सो एग्जीक्यूटेड। तो ये तो प्रोग्राम एरर आ गया कि दैट मींस आउटपुट इज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द यूजर एक्सपेक्टेशन। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास इसी को लेकर के पाइथन ने एक स्टेटमेंट बनाया। यही स्टेटमेंट पाइथन ने एक स्टेटमेंट बनाया। मनसा आ गई, yes Mansa, welcome in online session। okay, now I'm I was discussing about my discussion was based on the if statement, and just I want to use the if else statement, if else statement, and if else statement we have already done। Now just I am going to which statement, if else, if elif statement। This is the one new elif statement। if else statement तो अभी तक हम लोग देख चुके। now just I am going to introduce the if elif statement। अब ये if elif statement क्या होता है? if elif statement, that means
if you have a multiple statement for the processing on the basis of the condition, that means here in this example I am seeing that we have a multiple statement. One statement for a is equal to 10, one statement a equality 20, this is the statement. So now if I am putting here if, so this will not going to work, because print तो ये हो जाएगा लेकिन else part भी साथ साथ एग्जीक्यूट होगा, else part भी साथ साथ एग्जीक्यूट होगा। तो पाइथन में इफ और एलिफ का कॉन्सेप्ट आया। नाउ अभी इसको रन कराते हैं अगर, तो नाउ यू कैन सी, यू आर जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर, यहाँ पे अगर हम 20 देते हैं तो 20 एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, a is equal to 20, but the else part is also going to execute, is also executing. So that means a else part is unnecessary execute, else part is coming in our program, but ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर a is equal to 30 मिला तो दिस यही पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन else पार्ट भी आ रहा है। तो दैट मीन्स इफ कमांड विल नॉट टेक मोर देन 1 इन एनी प्रोग्राम। तो अब अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो हम करेंगे क्या, नाउ विल यूज द एलिफ स्टेटमेंट। तो एलिफ हमें क्या बताता है, एलिफ बताता है कि इफ के बाद अगर और भी कंडीशन है तो एलिफ सपोर्ट करेगा और उसमें एल्स नहीं प्रिंट होगा। एल्स तभी प्रिंट होगा जब आप इस रूल के बाहर जाएंगे। तो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू पुट वन इफ and rest of the condition where I am putting the elif. So that means ELIF, ELIF and ELIF, ये हो गया। तो अब हमारे पास if के बाद more than स्टेटमेंट्स हैं और ये भी स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि if के साथ ही एग्जीक्यूट हो। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हुआ तो हमारा else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स यूजर ने एक प्रोग्राम बनाया, यूजर ने ये कहा कि यूजर को इनपुट के थ्रू, यूजर गिव द नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के थ्रू वो नंबर देगा। किसके बीच में देगा नंबर, 10 और 40 के बीच में नंबर देगा। अब यूजर कितना नंबर देगा ये हमें भी नहीं पता है। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये डिसाइड होगा कि यूजर के माइंड में 10 है कि 20 है कि 30 है कि 40 है। तो यहाँ पे मोर देन 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, और अगर यूजर इसका नहीं फॉलो करता है तब एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो नाउ लेट्स सी, इसको हमने सेव किया और इसको हमने रन कराया, रन मॉड्यूल, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय ये। तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी दैट कि test.py यहाँ पे रन कर गया और नाउ यहाँ पे कह रहा है इंटर द नंबर। तो अब 10 to 40 के बीच में हमें लेना है, तो चलो हम नंबर लेते हैं 40 नंबर ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हमारा सिर्फ यही पार्ट एग्जीक्यूट किया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 40, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया। तो दैट मीन्स इससे क्या, what is going to what is the crux, इसमें कंक्लूजन क्या आया, व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन सिर्फ इतना ही आया कि अगर इफ स्टेटमेंट, इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर इफ जो है आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया तो क्या करेंगे, इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट for processing on the basis of condition. So if elif statement is to be used और इसका syntax इसी तरीके का है। तो now you can see that इसका syntax क्या होगा, syntax यही होगा क्या होगा, if होगा, एक condition होगा, एक statement होगा। फिर अगर हमारे पास out of multiple statement हो गया if, तो एक elif होगा,
दूसरा कंडीशन होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा, फिर ये तीसरा कंडीशन होगा, तीसरा स्टेटमेंट होगा, चौथा कंडीशन होगा, चौथा स्टेटमेंट होगा। इसी तरह से जितने भी कंडीशन होंगे वो हम इफ के साथ रख सकते हैं, और एल्स पार्ट आल्सो वी कैन पुट हियर। तो दैट मीन्स दिस इज द इफ एलिफ स्टेटमेंट। अब इसमें अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। इसका हम सिंटैक्स लिख देते हैं उस पे कि क्या इसका सिंटैक्स है। बहुत इजी सिंटैक्स है। यहाँ पे अब हम एक सिंटैक्स यहाँ पे लिख देते हैं। ये कब होगा? इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, ये कब हमें करना है? पॉइंट नंबर 1, इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो क्या होगा? अगर इफ जो है आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट हुआ तो इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। तो अगर ज्यादा हुआ तो एक स्टेटमेंट हमें प्रोसेसिंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वी विल यूज द इफ एलिफ स्टेटमेंट, और उसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स होगा इफ, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे कोलोन, एक ब्लॉक बनाने के लिए ये ब्लॉक क्रिएट करेगा। कोलोन हम क्यों देते हैं? फॉर द ब्लॉक पर्पस या इंडेंटेशन के लिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट होगा किसका? इफ का। ये स्टेटमेंट होगा व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट। और अगर हमारे पास आउट ऑफ इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट हुआ तो नाउ वी विल पुट हियर एलिफ, और यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे कोलोन और यहाँ पे स्टेटमेंट। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे रन होते जाएंगे। यहाँ पे जितने भी इफ के एलिफ के कंडीशन होंगे, और लास्ट में हमारे पास एक आएगा एल्स आएगा, एल्स ऑप्शन, एल्स में कोलोन और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा, दिस विल बी द एल्स। दिस इज द एलिफ, इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट। ये जो है हमारे पास इफ और एलिफ स्टेटमेंट का ये एग्जांपल है, और इसका हमने एक प्रोग्राम भी यहाँ पे देख लिया। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने सिंपल यूजर से इनपुट लिया है। अगर यूजर से हम इनपुट लेते हैं, हाँ एक चीज और, यूजर से अगर इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे यहाँ पे इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू टेक input from keyboard, तो वी हैव अ वन ऑप्शन। क्या है हमारे पास? अगर कीबोर्ड से हमें एंट्री लेनी है तो हमारे पास एक कमांड है, उसका नाम है इनपुट और ब्रैकेट के अंदर एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। लेकिन
ये जो है स्ट्रिंग फॉर्म में, और इसको किसी के अंदर हम स्टोर करा देंगे। तो दिस कमांड दिस कमांड ये जो इनपुट कमांड है ये क्या देगा, टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, लेकिन इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। ए की वैल्यू होगी, वैल्यू विल कम या विल स्टोर इन स्ट्रिंग फॉर्म। स्ट्रिंग फॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे अगर हम स्टोर करते हैं ANUP, तो ये इस तरह से स्टोर हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन में हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमने a की वैल्यू 10 दिया तो 10 ये नंबर में स्टोर नहीं होगा, इंट वैल्यू नहीं होगा, इंट वैल्यू नहीं होगा इनपुट कमांड से। ये किस में स्टोर होगा, ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा। नाउ जस्ट आई वांट टू convert into the integer value, that means I am going to type casting a की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो यही कमांड होगा, सेम कमांड होगा हमारे पास। बस हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू, आगे हम इंट लगा देंगे, और अगर फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो फ्लोट में लगा देंगे इनपुट, और यहाँ पे एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। ये हमारे पास क्या होगा, ये एक ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा यहाँ लगाया तो एक ब्रैकेट यहाँ एक्स्ट्रा लगाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिंटैक्स एरर होता है कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट है तो यहाँ सिंगल ब्रैकेट होता है, तो यहाँ 2 ब्रैकेट। अब जो ये a की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 10 मिलेगी, इंटीजर फॉर्म में मिलेगी, ऑटोमेटिक इंटीजर फॉर्म में। तो आप इसका यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन डू इट। तो दिस इज द नाउ। अब हमने पढ़ लिया इफ और एलिफ स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, nested if else statement, nested if else statement। now the next is nested if else statement, nested if else statement। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट तो सभी समझते हैं क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। सपोज दैट कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है जो है स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट। अगर हमारे पास इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट हो जाए, इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाए, तो उसी को हम बोलेंगे नेस्टेड स्टेटमेंट। मतलब नेस्ट के स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, कंडीशन के अंदर कंडीशन इज द नेस्टेड। तो अब इसमें क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड होगा। कैसे, सपोज दैट यहाँ पे हमारा एक इफ होता है और यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है, यहाँ सेमीकोलन होता है, ठीक है। उसके बाद इफ के साथ हमेशा एल्स आता है, तो यहाँ पे एल्स आ गया, एल्स आ गया, और इफ के साथ एल्स आ गया। अब ये हमारा नेस्टेड है, तो यानी कि इफ के अंदर इफ एल्स एक और आएगा। अगर नेस्टेड है तो इफ के अंदर एक इफ और आ गया, कंडीशन, और यहाँ भी सेमीकोलन, और यहाँ स्टेटमेंट, और इस इफ के साथ एल्स ये है, तो इस इफ के साथ एक एल्स और यहाँ पे रहेगा, एल्स, और यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक। तो अब इफ के साथ एक इफ एल्स हो गया, तो अब क्या होगा, इस एल्स के साथ भी एक इफ एल्स होगा, इस एल्स के साथ भी एक इफ और कंडीशन, कंडीशन, यहाँ पे कोलोन, और यहाँ पे स्टेटमेंट, और यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट,
और यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक इफ के साथ एक इफ एल्स लगा दिया और एल्स के साथ भी हमने एक इफ एल्स लगा दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। चलो इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहीं पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, यहीं पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे यूजर से हम 3 वैल्यू एंटर कराते हैं। ठीक है, यूजर से 3 वैल्यू एंटर कराते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू इंट इंट और इनपुट इनपुट एंटर अ नंबर एंटर अ नंबर। एक हो गया हमारे पास a के लिए, इसी तरह हम b के लिए भी करा लें। यहाँ पे हम b के लिए करा लें, ये हम ये b कर दें, b कर दिया। इसी तरह एक और करा लें c के लिए, यहाँ पे हमने c करा लिया। a और b c हमारा एक हो गया, ये हमने यूजर से ले लिया। अब पहले सबसे हम इस पार्ट को लेते हैं। इस पार्ट में क्या है हमारा, इस पार्ट में इफ है, इफ लिया, यहाँ पे कंडीशन है, तो यहाँ पे कंडीशन रख देते हैं a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। हमने एक कंडीशन रख दिया a इज लेस देन b और यहाँ पे एक सेमी कोलन दे दिया, हो गया, एक कंडीशन हो गया। फिर इसके बाद हम एक इफ कंडीशन यहाँ रखते हैं, इफ क्या दे दें, a इज लेस देन c और यहाँ पे हम कर दें प्रिंट प्रिंट a इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर, ये वाला हो गया। अब एल्स पार्ट रख दें, एल्स एल्स पार्ट में क्या रख दें, c इज ग्रेटर, प्रिंट c इज ग्रेटर। ये पार्ट हो गया, खत्म हो गया। अब नाउ एल्स पार्ट में आते हैं, इस इफ का एल्स पार्ट में आए, यहाँ पे एक इफ है, एक इफ रख दिया। अभी a से कंपेयर हो गया, अब b से कंपेयर करो, b इज ग्रेटर देन c और एक स्टेटमेंट कर दिया प्रिंट, क्या, b इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर। अब इफ हो गया तो ये एल्स भी आएगा, एल्स यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे कर दें ये एल्स वाला स्टेटमेंट, प्रिंट क्या हो गया, c इज ग्रेटर, c इज ग्रेटर, बस हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम एज इट इज बनाएंगे और एज इट इज एग्जीक्यूट कराएंगे। चलो लेट्स सी। इसको हम अपने इस पार्ट में आ गए। अब इसको हम 3 डॉट लगा के इसको हम रिमार्क में कन्वर्ट कर दें फॉर द फ्यूचर यूज, और ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट हो गया। अब इसको हम नीचे कर दें और एक ही फाइल हम स्टोर कर रहे हैं। अब हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू, यहाँ पहले बता दें कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ I am going to put here a input enter a number. Now I am going to put here. Now I am going to copy here c. Now b is equal to, this is going to, and now c is equal to, okay 3 हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे
अब हम करते हैं, एक लगाते हैं इफ a is greater than b, एक हमारा कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन हम यहाँ पे लगा लेते हैं else लगा लिया, और यहाँ पे if के साथ हमारा एक लगेगा if और एक लगेगा हमारा else, दोनों में कोलन कोलन होगा, और इसमें एक कंडीशन होगा a is greater than c, तो a is greater than c, तो प्रिंट क्या होगा, हम यहाँ स्टेटमेंट कर देते हैं, प्रिंट क्या होगा, a is greater हो गया। अब एल्स पार्ट में क्या कर दें, एल्स पार्ट में कर दें c is greater, now I'm going to put here c is greater, now c is greater, ये c is greater हो गया, एक if पार्ट हो गया। अब एल्स में हम दो पार्ट और रखते हैं, इसको कॉपी कर दें यहाँ पे, और ये यहाँ पे कॉपी हो गया। नाउ यहाँ पे क्या रख दें, b से कंपेयर करा दें, b इज, तो क्या होगा यहाँ पे, b इज ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज ग्रेटर हो गया। हमारे if के अंदर else हो गया, और इस if के अंदर if else हो गया, और इस else के अंदर if else हो गया। दिस इज द नेस्टेड। अब इसको हम रन कराएं, फाइल में हमने सेव कराया, सेव, और इसको हम रन कराते हैं, ये रन हो गया, और इसको हम शेयर कर देते हैं आपको ये शेयर हो रहा है स्क्रीन। अब इसमें क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर, पहला नंबर 10 दे दिया, दूसरा नंबर 20 दे दिया, तीसरा नंबर 30 दे दिया, और हम एंटर करा दें, तो कौन सा नंबर आया, c इज ग्रेटर। तो दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, प्रत्युष और मनसा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, मैं यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, नेस्टेड इफ में, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट टेल मी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्टेटमेंट बताया, सिंटेक्स बताया, Yes. एग्जीक्यूशन बताया, सब कुछ बताया। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। Now just I am response from your side. प्रत्युष, मनसा ने तो बोल दिया ओके, यस सर, सब समझ। समझ में आ गया, तो चलो। यस सर। तो आज